Hello, thank you very much. Today I am going to discuss about the algebraic expression part 1. There are two parts. So in the first part, you have to first understand what is the meaning of algebraic expression. Algebraic expression expressed from constant, there is a constant term, variable term which is known as the literals, and the basic algebraic operation means the addition, subtraction, multiplication, and division, whole number, power, exponent, and the root. All these are the parameters. When combined together, then it forms an algebraic expression. Right? Now, for example, just here, see, x, y is a literal, small alphabetic letters. 3, 2, and 7 are coefficient of x square, y, and xy. And 5 is the constant. Second, here is a x is the base, power is a 2. Here y is the base, power is the 1. X is the base, power is 1. Y is the base, power is 1. So all this what I have mentioned above is included in this case. Then the algebraic expression is formed. And from the expression, from the title, one can understand that I have studied in class 6, class 7. Why same thing class 8? No, but it is an advanced stage. When you move from 6 to 7, it is little bit more difficult. 8th, it is more difficult. If you go furthermore, complexity will come to the picture. So the following terms should be remember. अब देखिए term क्या है? In algebraic expression, terms are separated by the mathematical symbol. अब देखिए यहाँ this is plus, so this 3x square is the one term, and 2y is separately one term. This 7x is apparently one term, but combined of this becomes 3 term, and plus constant 4 is the 4th term. So the term means it is separated by plus or minus, not multiplication and division. Example, मैं दे दिया हूँ constant. Constant means the integer you can say, positive integer, whole number you can say, or natural number you can say, is a part of term. X square का part 3 is a constant. Variable means literal. XY is a variable here. Monomial means there is only one term. ध्यान रखिएगा. For example, just देखिए 3x square is a monomial algebraic expression. Binomial 2 term 3x square plus 2y. Trinomial 3x square 2y plus 7y. Factor, it is a product of one or more numbers, literal, which can be factor of each other. अब जैसे देखिएगा 3x square is equal to 3 into x square. So 3 and x square are the factor of each other. Right? Like and unlike term. देखिए, in like term, the sum of the power should be same. Even base are different. X and Y are different, but power is 4. ध्यान रखिएगा. Here power is 3. Here power is 4. Here power is 4. So like term means देखिए यहाँ पर मेंशन हुआ है जिसके sum of the power आपका जो है 4 है. Unlike मतलब after summing the power is different like this. If this is clear, then degree. What is the meaning of degree? One variable. If there is one variable, देखिए, in a expression has one variable, then highest power of that variable is degree of algebraic expression. देखिए, example 5x cube 3x square plus 1, degree of expression is 3, maximum power. वो डिग्री हो गया. ये 3 डिग्री पावर का एक्सप्रेशन है जो मतलब जो है 2 वेरिएबल. अब देखिए in this case sum of the maximum power of the 2 variable is what? x cube y cube. तो पावर इसका 6 हो गया. 2 वेरिएबल है लेकिन पावर क्या है? 6 है. तो पावर यहां पर डिग्री 6 हो गया और वेरिएबल 2 हो गया जो है. अब दिस आर द बेसिक थिंग्स
which you have to understood before starting the problem or question. अब देखिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. अब देखिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक टर्म शुड बी अरेंज इन ए वन ब्रैकेट. जितने लाइक टर्म है उसको एक ब्रैकेट में इकट्ठा करिए. हॉरिजॉन्टल मेथड एज वेल टर्म, हॉरिजॉन्टल मेथड में भी होता है, वर्टिकल कॉलम में भी होता है. रिजल्ट शुड बी सेम. अकॉर्डिंगली कोफिशिएंट ऑफ द लाइक टर्म शुड बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड. अब लाइक टर्म का मतलब क्या होगा? अगर एक्स क्यू आई क्यू है तो एक्स क्यू वाई क्यू एक साथ आना चाहिए, और वन वेरिएबल है तो एक्स क्यू तो उसको एक साथ आना चाहिए. मैं बताऊं एग्जांपल, एड दिस थ्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर गिवन. इसको ऐड करना है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. अब कैसे करेंगे? फर्स्ट राइट ऑल द टर्म इन ए ब्रैकेट. देखिए यहां पर लिखा गया हॉरिजॉन्टली, ये क्योंकि प्लस कहा गया है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया. अब देखिए स्टेप 2, स्टेप 1 में राइट द सम ऑफ थ्री एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट्स एज फॉलो. अरेंज ऑल द लाइक टर्म टुगेदर. अब देखिए यहां पर क्या 3x स्क्वायर है, यहां पर आ गया. फिर प्लस माइनस 4x स्क्वायर है, यहां पर आ गया. फिर प्लस 2x. ध्यान रखिएगा कि ये चीजें सब ब्रैकेट में होना चाहिए. लाइक टर्म को ब्रैकेट में रखिएगा. जो अगर नहीं रखेंगे तो लड़के गड़बड़ कर जाते हैं. हमसे भी, किसी से भी गड़बड़ हो जाएगा. अब यहां देखिए माइनस 4x, फिर प्लस 5x, फिर माइनस 3x एक साथ आ गया. कांस्टेंट एक साथ आ गया. अब इसका फायदा देखिए क्या होगा. फायदा क्या है? अब देखिए, अब इस ब्रैकेट के पहले प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस प्लस. अब इस तरह से आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं. उससे फायदा क्या होगा? अब देखिए इस ब्रैकेट में जो है लाइक टर्म है, सबके पावर 2 है और वन वेरिएबल है x. कुछ नहीं करना है. फर्स्ट मैंने कहा था कि सिंगल डिजिट का एडिशन सब्सट्रैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस स्टेज में मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा. बदमाश पहले एडिशन कर देखिए. अब ये प्लस 3 है, प्लस 2 है, प्लस 3 प्लस 2 5 होता है. अगर लड़के को नहीं पता कोई नहीं कर सकता. और माइनस 4 कर दीजिए तो प्लस 5 में माइनस 4 करेंगे तो 1 बचेगा. देखिए यहां पर हमने ब्रैकेट में ही लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा है, ध्यान रख लीजिएगा. अब यहां देखिए ये प्लस 5 है, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 है. माइनस 7 इज मोर देन प्लस 5. जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 आएगा. इसलिए देखिए इसको माइनस 2 मैंने एक ब्रैकेट में रखा है. अब देखिए यहां पाइए प्लस 1 प्लस 5 6 माइनस 2 इक्वल टू 4. अब यहां पर भी ब्रैकेट आपको ओपन करना पड़ेगा. प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस. आंसर इज करेक्ट. Nobody can say that this answer is wrong. You yourself have a confidence of saying that this is correct. ये हॉरिजॉन्टल मेथड ऐसे करते हैं. अब वर्टिकल मेथड में मैं आ रहा हूं. अब देखिए वर्टिकल मेथड में देयर आर 3 एडेंड. तो एडेंड 1 एडेंड 2 एडेंड 3 लिखिए. इसमें भी ध्यान रखिए कि हायर पावर को एक साथ लिखिए. दिया हुआ है क्वेश्चन जो है, हायर पावर को एक साथ लिखिए, फिर नेक्स्ट लिखिए, फिर कांस्टेंट लिखिए. सिंपल. अब इसमें भी वही करना है, क्योंकि ऐड करना तो प्लस साइन. अब वहां पर देखिए 3 2 5 5 माइनस 4 1 1x स्क्वायर. 1 इज साइलेंट तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है. जो याद देखिए माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2. अब कोई कह सकता है, अब यहां पर मेरा सजेशन क्या है कि वर्टिकल मेथड इज मोर कन्वीनियंट देन द हॉरिजॉन्टल मेथड, क्योंकि उसमें ब्रैकेट्स बहुत यूज करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग. लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. अब देखिए सब्सट्रैक्शन का है, और ये ध्यान रखिए कि सब्सट्रैक्शन में मिनुएंट होता है और सब्सट्रेंड होता है. सब्सट्रैक्शन केवल 2 टर्म में किया जा सकता है. अब देखिए क्या रहा है, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग इन बोथ मेथड, 1 इज डन फॉर यू. अब देखिए दिस फ्रॉम दिस, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना. सिमिलरली यू फॉलो द सेम प्रोसीजर व्हाट यू हैव डन इन एडिशन. अब देखिए मिनुएंट क्या है आप लिख लीजिए, सब्सट्रेंड क्या है ये लिख लीजिए. अब देखिए हॉरिजॉन्टल मेथड स्टेप 1 क्या है कि दिस माइनस दिस ब्रैकेट में होना चाहिए. अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब इसको ब्रैकेट ओपन, यहां पर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि माइनस करना है, प्लस नहीं करना कि लाइक टर्म. और ओपन करने के बाद फिर लाइक टर्म साथ साथ करिए. सेम थिंग
ओपन द स्मॉल ब्रैकेट। अब कलेक्ट किया गया है, देखिए सेम पावर वाले कलेक्ट किए गए हैं और फिर उसको जैसे मैंने यूजुअल कहा है उसी तरह से ये आ गया है, ओपन बिग ब्रैकेट्स। अब देखिए, अब ध्यान रखिए कि ये चीजें कई बार मैं कह चुका हूं, लोग माइंड भी करते हैं कि बच्चे इतने हमारे होशियार हैं कि जानते हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट important thing is the multiplication of mathematical symbol, then addition of the numerals, numbers, then you can go for the similar power को एक ब्रैकेट में करना है। वर्टिकल मेथड में देखिए, वर्टिकल मेथड सेम आई हैव डन, बट मिनिमम सबस्टेंड एंड यहाँ पर सबस्टेंड मैंने लिख दिया है, जो ध्यान रख लीजिएगा जो, और सबस्टेंड से 2 बार लिख दिया क्या। चलिए अब इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, क्योंकि 2 बार नहीं होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। सबस्टेंड ये यहाँ पर, ये आपको यहाँ ये सबस्टेंड यहाँ पर होना चाहिए, और बाकी जो लिखना है यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। तो जब माइनस कर रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ध्यान क्या, वो देखिए आप ये आ गया इंटू, मैंने इसीलिए लिखा था कि इसको इंटू करना पड़ेगा, इंटू कर दीजिए जो ये मैथमेटिकल सिंबल का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर आ गया सेम थिंग, यू विल गेट सेम रिजल्ट। अब देखिए, अब यहाँ पर वर्ड्स प्रॉब्लम है, सेम थिंग एज यू डन इन द प्रीवियस, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस। जहां भी व्हाट आ जाता है वहां पर एज्यूम कर लीजिए दिस। अब देखिए, अब एज्यूम कर लीजिए कि आपका x को मैं इसमें ऐड करूंगा या a को एज्यूम करूंगा। अब क्यों ये कहा हूं, क्योंकि x ऑलरेडी दिया हुआ है, तो x करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं लेट अस अज्यूम a इज एडेड टू गेट रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंट। तो अब क्या होगा, अब a प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो कहा व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। वर्ड्स प्रॉब्लम समझ लीजिए। अब सिंपली क्या है, इसको इधर कर दीजिएगा तो ये माइनस हो, हॉरिजॉन्टल। अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा, वर्टिकल से काम नहीं चलेगा, उसे कर सकते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल से। और फॉलो द सेम प्रोसीजर, अरेंज द लाइक टर्म एज दिस, और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए, यहां देखिए, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पेयर ऑफ लाइक टर्म। पेयर मतलब 2 होता है, आप ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, 4xy माइनस zxy, ये आपका क्या है, अनलाइक, बिकॉज सम ऑफ द पावर वेरिएबल्स आर नॉट सेम। मैंने 1 + 1 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म है, मैंने बता चुका हूं। उसी तरह इसको देखिए, 2 1 3, यहाँ पर 2 + 1 3, ये लाइक टर्म है। 2 + 2 + 1 5 2, ये भी लाइक टर्म है। अब देखिए, अब यहां पर अब पहले एडिशन कहा था, क्या सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो ए एज्यूम कर लीजिए, जहां हमारा क्या गया। अब इस पे ए है तो आप एक्स एज्यूम कर सकते हैं, मतलब जो है फर्स्ट टर्म मिनिमम, सेकेंड टर्म सब्सटेंट, देन डू द सब्सट्रैक्शन। अब देखिए, ये 2-3 एग्जाम्पल दिया है, नहीं कह रहा एग्जाम्पल 2-3 नहीं दिया, ध्यान से सुनेगा। सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो पहले आपको सम करना पड़ेगा, एंड वर्टिकल कॉलम इज वेरी इजी, तो वर्टिकल कॉलम से सम कर लिया गया, ये सम ये आ गया। इन दोनों का सम जो है 4a + 6b - 11c आ गया। बात समझ रहे ना, तो ये आपका सम हो गया। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, थोड़ा मैं यहां पर जो है ये गलत लिखा गया है, क्योंकि सम ऑफ दिस और दिस कहा गया है, या ध्यान सुनिएगा, नहीं गड़बड़ है। ये आपका सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो 8a कहाँ है, 8a यहां पर, और -6a यहां पर है, ठीक है ना। तो इसका सम, और 2 सम निकालना है, इसका सम, ध्यान सुनिएगा, सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम सम ऑफ दिस टू, तो दोनों का सम निकालना है। तो देखिए, ये जो सम निकाला गया है इसका है 6a - 2b, इसका सम निकाल दिया गया जैसे। फिर अब देखिए, इसका भी सम निकाला गया है, लेकिन गलती से क्या लिखा गया है, ये सबसेंड लिखा गया, वो सही नहीं है। अब यहां पर भी सही नहीं है, क्योंकि सम लिखा गया तो मिनिमम कहां से आना चाहिए, तो मैं यहां पर करेक्शन कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये एडेड 1 होगा, ये भी एडेड 1 होगा, और ये भी एडेड 1 होगा।
शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं ADD1, ADD1। देखिए अब हमसे भी गलती हो रहा है, तो ये सम हो गया और फिर ये भी वो होगा सम, ये भी सबसे गलत लिखा है। देखिए लिखते समय टीचर का कहाँ कहाँ दिमाग दौड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन वही टीचर अच्छा होता है जो अपनी गलती को स्वीकार करके वो फॉलो करता है। 1 तो सम 1 ये हो गया, सम 2 हो गया। अब क्या कर रहा है कि ये सम को इसमें से घटाना है, यानी ये वाला ये सम है, ये वाला ये सम है, तो यहां क्या हो रहा है कि मीन क्या हो गया, ये हो गया, सबसेंट ये हो गया, तो सम 1 सम 2। अब देखिए अब यहां पर हमने क्या किया है, सब्सट्रैक्शन तो यहां लिखा है, सबसे मीन सबसेंट। अब करिए डिफरेंस आपका इतना, क्योंकि सम 1 बड़ा है, तो सम 1 से ही कहा सम 2 को घटाने के लिए। इन वर्ड प्रॉब्लम यू हैव टू अंडरस्टूड व्हाट हैज बीन सेड। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, समेशन एडिशन, आई थिंक 2 एग्जांपल दे दिया हूं, इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से हो। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, इन दिस केस मल्टीप्लिकेशन इज डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ध्यान रखिएगा। वैसे मल्टीप्लिकेशन कहां से करते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेकिन अल्जेब्रिकेशन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो चीज मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट तौर पर लिखा हूं, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, इसलिए मैंने भूल कर दिया। अब क्या कर रहा, प्रॉपर्टी 1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर विद लाइक सन इज पॉजिटिव। लाइक सन होता है तो पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, अनलाइक सन मींस ऑलवेज निगेटिव। ये प्रॉपर्टी 1 है। अब यहां पर दे दिया है, देखिए 7 4 जा 21 और 7 4 जा 21, बट यहां पर प्लस प्लस माइनस सेम होगा। उसी तरह से देखिए डिवीजन में क्या होता है कि अगर अपोजिट साइन है, अब यहां प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 4/5, ठीक है। इसी तरह से सिंपल चीज है, इसमें कोई मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने वाला हूं। बस प्रॉपर्टी 2, इफ x इज ए वेरिएबल देन x टू द पावर m इंटू n टू द x टू द पावर n सम हो जाता है। ये मैं पावर और एक्सपोनेंट में बताया है, लेकिन यहाँ पर पावर एक्सपोनेंट वर्ड नहीं यूज किया गया है, बेस यूज किया गया। x सेम है तो पावर 8 हो जाता है। 2 प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है। अब देखिए प्रॉपर्टी 2, ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मोनोमिनियल। अब इसमें लिखेगा, अब रूल 1 क्या है, स्टेप 1 फर्स्ट मल्टीप्लाई साइन ऑफ न्यूमरल्स, सेकेंड मल्टीप्लाई द न्यूमरल्स, स्टेप 3 लास्ट मल्टीप्लिकेशन लिटरल। पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर जो है आपका जो है न्यूमरल का मल्टीप्लिकेशन करिए और फिर लिटर का। यहां देखिए 4x इंटू 6y है, तो प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा, मैं डिटेल में मैं दिया हूं, फिर न्यूमरल का मल्टीप्लाई किया हूं, फिर लिटर का मल्टीप्लाई किया हूं, तो प्लस इंटू प्लस प्लस और 24xy। दैट इज हाउ यू हैव टू डू फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मोनोमिनियल, माने 2 सिंगल टर्म का मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है। रूल 2, फॉर सेम बेस द पावर इज एडेड, मैंने कह दिया है। अब यहां देखिए आप प्लस को प्लस हो जाएगा, 4 5 या 20, x स्क्वायर x क्यूब टू द पावर 5। थर्ड, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई द बोथ पावर। अब देखिए पावर का पावर है तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये सब रूल है जो लेक्चर में फॉलो किया जाएगा। अब यहां देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमिनियल, पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 2 टर्म, देखिए, और इसका तो इसको सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे। एग्जाम्पल सेम थिंग हैज बीन डन हियर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पॉलिनोमियल मींस बाइनोमियल, ठीक है, जिसमें 2 टर्म हो, तो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी होगा क्या, ठीक है। अब देखिए अब इसमें कहा गया है, इसको 2 तरह से किया जा सकता है, लेकिन मैंने यहां पर केवल इसी तरह किया है। अब देखिए फर्स्ट मल्टीप्लाई सी प्लस डी बाई ए एज ए सी प्लस ए डी, देन सी प्लस डी बाई बी लाइक दिस, और इसको ऐड कर दीजिए तो आप ये पा जाएंगे।
अब हमने कहा है कि आपको लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करना होता है, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूं जो आप समझ जाएंगे। मैं यहाँ पर ऐसे लेके दिखा रहा हूं। क्या है, अब कह रहा है कि a प्लस बी और c प्लस डी, या तो पहले इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लायर। मैं रखता हूं c प्लस डी को मैं ऊपर लिखता हूं और a प्लस बी को मैं नीचे लिखता हूं। और मैंने कहा क्या है कि यहां पर लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई ऑफ ए है, तो ए को AC में मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आ जाएगा, प्लस ए को AD में करेंगे तो AD आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और बी को फिर सी में मल्टीप्लाई तो BC आ जाए, तो कोई यहां नहीं है तो प्लस BC यहां कर दीजिए, प्लस BD एड कर दीजिए, AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। अब देखिए, मैं यहां पे इसलिए छोड़ा था, ये करके यहां दिखाऊंगा, क्योंकि करके दिखाने में सभी को करूंगा तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है तो इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पर देखिए वर्स प्रॉब्लम क्या कह रहा है, फाइंड ए वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स को समझना चाहिए, वो क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है, कुछ डायमेंशन आर गिवन बिलो, वन इज डन फॉर यू। देखिए, डायमेंशन का मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट, क्यूबॉइड में ही होता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर। अब जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब दिया हुआ है। अब देखिए, हम बी का कर रहे हैं, मैं इसका कर रहा हूं। फार्मूला क्या है, फार्मूला किस चीज का है, वॉल्यूम का, बेस इंटू लेंथ इंटू हाइट, बेस इंटू लेंथ इंटू हाइट। सेम थिंग वहीं पर मैंने सावधानी क्या है, पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन हमने कहा है, प्लस इंटू प्लस, देयर 3 प्लस, तो सभी प्लस हो जाएंगे। नंबर का यहां मल्टीप्लाई किया, सभी प्लस हैं, फिर पावर का उसी तरह सबका कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है सिंप्लीफाई दिस बट फॉर a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1। अब जरा यहां देखिएगा, when you are going to substitute this value, the value we substitute in the bracket, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 3 इंटू a को ब्रैकेट में हमने यहां लिखा है, फिर a को यहां ब्रैकेट में लिखा है, फिर -b को यहां ब्रैकेट में लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूं। फिर देखिए, b को यहां फिर ब्रैकेट में लिखा हूं, ऑल ब्रैकेट में लिखा गया है, और सिंपली डू द मल्टीप्लिकेशन एडिशन, यू फाइंड द फाइनल रिजल्ट। अब देखिए 9, एड दिस 3 टर्म है, 3 एडेंट हो जाएगा, तो यहां देखिए सेल का एडेंट 1 एडेंट 2 एडेंट 3। अब देखिए, अब इसको लिखने के क्या है, पहले यही पर ब्रैकेट खोल दीजिए, L स्क्वायर माइनस LM, नो प्रॉब्लम। फिर इसका M स्क्वायर माइनस MN, नो प्रॉब्लम। N स्क्वायर में, लेकिन अब यहां पर देखिएगा जो है, अब L स्क्वायर जो है का लाइक टर्म का मतलब जो है सेम पावर, सबसे पहले एक बार लिखिए L स्क्वायर, LM बाकी सब 0 0 है। फिर यहाँ पे M N, ये अब देखिए यहाँ पर फिर मैं गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर M स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर N स्क्वायर मैंने लिखा है। चलिए मैं यहाँ पर इसको जोड़ देता हूँ, ये M स्क्वायर हो गया, MN। यहाँ देखिए N स्क्वायर प्लस N, अब सबको जोड़ दीजिए, ये हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए, अब यहां पर भी दिया है कि मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम। देखिएगा, ये आपका 2 टर्म है, ये भी 2 टर्म है, सब दोनों टर्म है, उसी तरह मल्टीप्लाई करना जैसे पहले मैंने बताया था। देखिए, सॉल्यूशन फॉर डी जो कॉम्प्लेक्स है उसको मैं ले रहा हूं, यहां पर आ गया। अब देखिए, अब इस टर्म को इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को इस टर्म में करेंगे, बिकॉज आई हैव सेड दैट मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सेम थिंग आई हैव डन हियर। और जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिए, बाकी यहां पर रख लीजिए। हैंस देखिए मैंने दिया है। अब देखिए, अब ये जरा ध्यान से सुनिएगा, ये है क्या, 3a/4 स्क्वायर हो गया, ठीक है, -2b/3 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर 3 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर नीचे हो गया। अब बाकी यहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप मिस करेंगे तो गलती होने की चांसेस है। जो सिंप्लीफाई है, यहां पर भी मैं कह रहा हूं कि जब x y z की वैल्यू रखिएगा तो उसको ब्रैकेट में लिखिएगा, जैसे ये वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ। अब सोल्यूशन फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट, अब इसमें पहले ओपन को ब्रैकेट करना पड़ेगा, उसमें सब कुछ कट जाएगा और बचेगा इतना बचेगा। तो इसमें z की वैल्यू -1 स्क्वायर, x की वैल्यू -1 स्क्वायर, y की वैल्यू 0।
ये पार्ट 1 इसलिए कहा कि इसमें बहुत, अगर ये अंडरस्टूड कर गए तो पार्ट 2 में अंडरस्टूड करना। मैं बार बार ये रिपीट नहीं करने जाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम साइन इज पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अपोजिट साइन इज नेगेटिव, देन मल्टीप्लाई न्यूमरल, देन मल्टीप्लाई लाइक टर्म, ये सब मैं कहने नहीं जाऊंगा बार बार। वही देख, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ क्या है, यहाँ पर 3 टर्म है, 2 टर्म है, तो बेसिकली 3 टर्म को पहले लिखिए, 2 टर्म को बाद में लिखिए। अब 1 को इसमें मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा, और a को करेंगे तो ये आ जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, अब a स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस ए क्यूब बी। अब यहां पर देखिए सबको, अब डिक्रीजिंग डिग्री में लिखना, डिग्री पावर में अंतर होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 3 है डिग्री, यहाँ 3 डिग्री है, यहाँ 4 डिग्री है, यहाँ 4 डिग्री है, तो पहले 4 डिग्री का लिखा गया, फिर 3 डिग्री का, फिर 1, सिंपल। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू। अब डिवीजन देखिए, डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो है, डिवीजन इज एन इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। कैसे है, अगर आप टेबल पढ़े होंगे तो 3 into 2 is equal to 6, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कहते हैं। लेकिन when 2 or 3 go from left to right तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाता है, तो 3 is equal to 6 divided by 2 और 6 by 2, ये डिवीजन फैक्ट हो जाएगा। और 2 is equal to 6 divided by 3 is equal to 6 upon 3, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, ये डिवीजन फैक्ट है, ये ध्यान रखे रहिएगा। जो इसका डिवीजन दे रहा है, डिविडेंड पहला वाला टर्म डिविडेंड होता है, डिविडेंड फाइनल वाला डिविडेंड, एंड डिविजर हैव सेम साइन, तो क्या होगा, क्वेश्चन के भी वही पॉजिटिव साइन होगा जो एग्जांपल हमने दे दिया है। इफ डिविडेंड एंड डिविजर हैज द अपोजिट साइन तो फाइनल रिजल्ट नेगेटिव साइन होगा। अब एग्जांपल दे, भाई इतना ही करना है। डिवाइड बाय मोनोमियल, अब मोनोमियल एक टर्म ये है, एक टर्म ये है सॉरी। उसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है, करीब जो है आपका जो भी डी क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका डिविडेंड जो है मोर देन 2 टर्म है और डिविजर जो है 1 टर्म है। अब देखिए डी एग्जांपल देखिए, इस 1 2 3 टर्म को हमको 4xy से करना है डिवीजन, तो डिविडेंड न्यूमरेटर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर लिखा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अब इससे पहले ध्यान रखिएगा कि दिस डिविजर इज ए डिविजर फॉर एवरी टर्म, यहां ध्यान रखना पड़ा, पहले तो नहीं एक बता गया क्योंकि अलजेब्रिक में मैथमेटिक्स में ऐसा होता नहीं है। तो अब देखिए हर टर्म को इससे हमने डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखिए, अब नाउ यू नो दैट एक्स और वाई प्लस 1 पावर है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन चेंज कर, पावर का साइन चेंज कर देगा, पावर का साइन चेंज करेगा। देखिए मैंने चेंज कर दिया। अब यहां पर बहुत सिंपल हो गया, x का पावर 4 है, x पावर -1 तो 4 - 1 3 होना चाहिए, देखिएगा 3 कर दिया। y 3 है, -1 है तो 2 होना चाहिए, देखो 2 हो गया। मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाइड डिटेल में मैंने किया है, ध्यान रखिएगा, तो उसके लिए उन बच्चों के लिए जो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और y का पावर 0 1 होता है, इसे हमने 1 कर दिया। किसी भी चीज का पावर 0 होता है 1 होता है, चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर्स हो और रैशनल नंबर हो, मैं चारों, इसलिए किसी का पावर 0 1 हो जाएगा। अब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, तो जनरली मतलब जो है, अब देखिए यहां पर इसको अरेंज द टर्म डिविडेंड एंड डिविजन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। इन ऑर्डर टू गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन, डिवाइड फर्स्ट टर्म बाय डिवीजन। ये देखिए, it carries still either remainder becomes 0 or degree of the remainder becomes less than degree of division। अब ये देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि डिवीजन, डिविडेंड, क्वोशंट, रिमाइंडर, ये 7th क्लास तक बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि डिविडेंड किसको कहते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए, अब एग्जाम्पल 14 दिया है और एक एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, क्वेश्चन डी है कि हमको डिवाइड डी कहाँ है, यहाँ पे ये है, इस टर्म में पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना। तो पहले देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, हायर डिग्री, लोअर डिग्री, लोअर डिग्री, डिविजर, हायर डिग्री, 3 2 1 0, पावर 0 हो गया तो 1 हो जाएगा, 1 0, ये इस ऑर्डर में पहले लिखिए, तब डिविडेंड को यहां लिखिए,
डिविजन को यहां लिखिए, क्वोशिएंट यहां लिख दिए, जिसे याद रहेगा, रिमाइंडर लास्ट में आ जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, 2x + 5 है, तो हमको फर्स्ट टर्म इसका लेना चाहिए जो है, फर्स्ट टर्म 2x³ डिवाइडेड बाई 2x। जब देखिएगा 2x³ 2x तो कितना आ गया, x² आ गया, तो ये क्वोशिएंट हो गया, तो x² हो गया। इस क्वोशिएंट को इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, फिर ये घटाइए तो आपका देखिए 11 - 6x² आ गया, डाउन करिए 7x आएगा। अब 6x² में फिर 2x का डिवाइड करिए, कहीं दिया होगा मतलब जो करेंगे, अगर 6x² को 2x में डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा, रिमाइंडर बिकम 0। ये स्टेप यहां दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो हर स्टेप को फॉलो करिए। अगर हमारी बात को नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में इसके बाद ही स्टार्ट करूंगा, 8th से स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहले जो समझ रहे हैं लड़के वो पढ़ करके समझ लें, जो ब्रिलियंट लड़के के लिए काफी सफिशिएंट है। हिंदी इसलिए लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि उत्तर भारत में मैक्सिमम लोग गांव में हिंदी जानते हैं, शहर में नहीं जानते हैं, अरे शहर में जानते हैं इंग्लिश। अब देखिए इज दिस ए फैक्टर ऑफ दिस। अब इसके लिए जब तक डिवीजन नहीं करेंगे आप पता नहीं चला फैक्टर, रिमाइंडर 0 होगा तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं हो तो फैक्टर नहीं होगा। जो आप नंबर्स में करते हो वही इसमें करना है, लेकिन डिवीजन करना। अब वही फॉलो डिवीजन करिए, रिमाइंडर नॉट 0 तो फैक्टर नहीं है। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस। अब देखिए अब यहां पर डिवाइड करिए, रिमाइंडर आपके यहां आ गया। स्टेप 2 क्या है देखिएगा, 2x + 3 ए फैक्टर देन रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। रिमाइंडर शुड बी 0 और रिमाइंडर 0 होने के लिए m को 0 होना चाहिए। मैंने रिमाइंडर 0 का मतलब m = -3 होगा, तो m = -3 होगा तब जाके फैक्टर हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन दिस इफ वन फैक्टर ऑफ देम। अब इसका मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर इज दिस, मतलब मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर इज इक्वल टू दिस, ये प्रोडक्ट है। इफ वन ऑफ देम, अब एक मल्टीप्लायर बन तो उसको रख कर फाइंड कर देखिए, a * this इज इक्वल टू दिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, इन पार्ट 1 आई हैव डिफाइंड सम टर्म लाइक पावर क्या होता है, बेस एंड एक्सपोनेंट पावर, अगर डिफरेंट बेस है तो जोड़ के पावर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका एक टर्म वाला एक्सप्रेशन क्या होता है, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं। लेकिन 1 टर्म, 2nd टर्म, जनरली एडिशन सब्सट्रैक्शन में आपको मैथमेटिकल सिंबल का मल्टीप्लिकेशन और फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऑल दिस मस्ट बी नोन, देन यू कैन डू पार्ट 1। और पार्ट 1 समझ में आ जाएगा तो पार्ट 2 समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।